ابھی ہمارے مہمان مفتی محمد عالمگیر صاحب دامت برکات مداریہ تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بیان فرمائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ انعماد کے ساتھ ان کا بیان سماعت فرمائیں. الحمدللہ علی کل حال سوى الکفر والضلال اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب احترام بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور یقیناً سن رہی ہیں مسلمات فرمانے والی میری ماں اور بہنیں اور عزیز طالبات، حضرت مولانا کے حکم پر حاضری ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اصل بیان تو حضرات کا ہوگا. میں نے اور آپ نے اس جلسے میں جو حاضری لگوائی ہے اور شرکت کی ہے، اور یہ جلسہ ایک بنات کے مدرسہ کے حوالے سے اور اس کا سال 9 کا آغاز، اور آپ ماشاءاللہ جتنی محبت کرنے والے اور ذوق رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، تو تمام احباب ماشاءاللہ صاحب ذوق تشریف فرمائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اور یقیناً یہاں پہ پڑھنے والی طالبات اور پڑھانے والی معلمات، یا تو بعض احباب کی وہ بچیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی جو پڑھنے والی ہیں، پڑھانے والی ہیں. اکثر شرکاء کا یقیناً مدرسہ کے ساتھ ایک ضابطے کے مطابق ربط ہوگا اور تعلق ہوگا. میں نے اور آپ نے آج ایک دو باتوں پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی ادارے کے اندر مدرسہ میں داخل کرواتے ہیں، دینی ادارے میں داخل کرواتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے واسطے. اور قرآن پاک کی تعلیم اور سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ایک حدیث میں نے عرض کی ہے. آپ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کو سب سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے. یقیناً آپ کے بچے تمام بچوں سے بہتر قرار دیے گئے ہیں. آپ کے بیٹے دنیا جہان میں بسنے والے انسانوں کے بیٹوں سے افضل ہیں، اور آپ کی بچی، آپ کی بیٹی جو مدرسے میں پڑھتی ہے، وہ تمام بچیوں سے، تمام بیٹیوں سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے. ہمارا یقیناً ایمان اس پر ہے. ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ برحق ہیں، وہ سچے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جو قرآن پاک سیکھ رہی ہے، وہ دنیا کائنات کے تمام بچوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور اس کے اعلیٰ ہونے کی فضیلت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام سے، کلام اللہ سے ان کا تعلق ہے. پڑھانے والوں کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے، اور پڑھنے والوں کا تعلق بھی کلام اللہ کے ساتھ ہے. تو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی جو نسبت اور تعلق ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے بچوں کی فضیلت بھی تمام لوگوں سے، تمام بچوں سے زیادہ کر دی ہے. تو نسبت کا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، بڑا قدر ہوتی ہے نسبت کی. ایک کپڑا وہ ہے، میں نسبت کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، ایک کپڑا وہ ہے جو کہ
आम बाजार में बिकता है, मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी घर में लाए हुए कपड़े का ताल्लुक मैं और आप अगर कुरान पाक के साथ कर दें, उसी का हम खिलाफ बना दें, कलामुल्लाह का और कुरान पाक का खिलाफ बना दें, तो उस कपड़े की शान और अजमत हमारे दिलों में बढ़ जाती है। एक वो कपड़े हैं जो मैं और आप पहनते हैं, बदलते हैं, शब रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं, और एक वो कपड़े हैं जो कुरान पाक के ऊपर सब जो है वो मिला हुआ है, खिलाफ बना हुआ है, वो कुरान पाक का लिबास बना हुआ है, कुरान पाक का जो है वो खिलाफ बना हुआ है। तो उसके ताल्लुक और निस्बत की वजह से उसकी कदर व मंज़िलत मेरे और आपके दिलों में आ जाती है। इसलिए जब हम उस गिलाफ को धोते हैं तो उसको पानी को उसके नीचे नहीं गिराते। हमारी बच्चियां उसके पानी को नीचे नहीं गिराती, कोई ऐसा ना हो कि किसी के पांव आ जाए और बेअदबी हो जाए, बल्कि उसके पानी को भी हम दीवारों पे गिराते हैं, छत पे गिराते हैं, इसलिए कि उस कपड़े का ताल्लुक कुरान पाक के साथ हो जाता है। तो जिसका ताल्लुक, जिसकी निस्बत कुरान पाक के साथ हो जाए, खा वो इंसान हो, खा वो जानदार चीज़ हो, खा बेजान चीज़ हो, उसकी अजमत, उसकी फजीलत अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ जाती है। तो एक आम सादा सा कपड़ा अगर उसका ताल्लुक कुरान पाक के साथ हो जाए, वो कुरान पाक के साथ लग जाए, कुरान पाक के ऊपर चढ़ा दिया जाए, खिलाफ बन जाए, तो उस कपड़े की अजमत बढ़ जाती है। इसी तरह वो लकड़ी जो मेरे और आपके घर में पड़ी हुई है, अगर वो तिपाही बना दी जाए, कुरान पाक उस पर सवार हो जाए, उसको कुरान पाक की सवारी बना दिया जाए और रेल बना दिया जाए, तो हम उसका अदब एहतराम करते हैं, इसलिए कि इसकी निस्बत और इसका ताल्लुक जो है कुरान पाक के साथ हो गया। तो रहे तो मेरे दोस्तों, हमारे तालिबात और हमारे तलबा जो कुरान पाक सीखते हैं और जिनका ताल्लुक कुरान पाक के साथ है, उसकी बनिस्बत, उनकी निस्बत जो है जिनके साथ हो जाए, अल्लाह पाक उसका मकाम भी बढ़ा देते हैं। अब वालिदैन जो है उनको भी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकाम हासिल होगा, इस निस्बत की बरकत से कि वो हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। मैं बात मुख्तसर करता हूँ। एक बात इस मौके पे अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ़्ज़ कराने के बाद अक्सर बेशतर ये होता है कि हम अपने हाथों से ज़ाया कर बैठते हैं। हिफ़्ज़ मुकम्मल हो गया, फिर उसके बाद दुनिया के अंदर इस कदर मशगूल हो गए कि वो बच्चे बस औकात कुरान पाक भूल जाते हैं, उनको मंज़िल तक याद नहीं रहती। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, कुरान पाक याद करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया तो उसका हिफ़्ज़ महफूज रखना उसके बाद ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह तालिबात हैं, वो भी अपने पढ़े हुए को याद रखें, महफूज रखें। ये महफूज तब रहता है जब मेरा और आपका बच्चा पढ़ा हुआ कुरान पाक का हाफिज इस माहौल से जुड़ा रहेगा, तो उसका पढ़ा हुआ ही महफूज रहेगा। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी एक कमी है कि वालिदैन अपने बच्चे को ज़ाया कर देते हैं हिफ़्ज़ करने के बाद। और तालिबात को एक बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, यकीनन उनकी मालूमात में तशरीफ़ फरमा होंगी कि अपने तालिबात की तालीम के साथ तरबियत भी करें। अगर आपने अपनी तालिबात की तालीम के साथ तरबियत न की तो ये आपकी बच्चियाँ ज़ाया हो सकती हैं, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, आपके मदरसे की कारकर्दगी वो मुतासिर हो सकती है। वो आपकी बच्ची जिसने 6 साल आपके यहाँ पढ़ा, अगर सही माना के अंदर मुअल्लिमा ने उसकी तरबियत न की तो वो बच्ची न जाने कहाँ तक चली जाए। हो मदरसा की तालबा और वो पर्दे का एहतमाम न करे, हो मदरसा की तालबा वो शादी ब्याह के मौक़ों पर रस्म रसूमात की नज़र हो जाए। ये आज का बहुत बड़ा सानिया है। हमारे अजीज तालिबात वो घरों में जाती हैं, घरों का माहौल नहीं होता, वालिदैन उस पर सख्ती नहीं करते, वालिदैन ख्याल नहीं करते, और बच्ची की असास और बुनियादी पुख्ता नहीं होती, उसके तरबियत का साँचा मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से देखने में यूँ आता है कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर, ये शादी होने के बाद
वो वालमा मुअस्सर होने की बजाय मुतासर होकर बैठ जाती है। मुआशरे के अहवाल से, मुआशरे की इस आबो हवा से मुतासर हो जाती है वो बच्ची, जिसने मुअस्सर बन के रहना था। तो मैं अपनी अजीज तालिबात से गुजारिश करूंगा और उनकी वालिमा से कि इनकी इस हवाले से तरबियत करें ताकि आइंदा चल के ये अपने अपने ख़ानदान की तरबियत कर सकें। मर्द का पड़ा एक फ़र्द का पड़ा, औरत का पड़ा पूरे 7 ख़ानदानों का पड़ा शुमार होता है। इसलिए मेरे नज़दीक बच्चों की तालीम बच्चों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बस औकात अपने अपने इलाके की बात है, बाद इलाकों में तो बच्चों को पढ़ाना मायूब समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक बच्ची को सबसे पहले दीन की तालीम से और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए। दीन की तालीम और तरबियत से उसको आरास्ता करना चाहिए, इसलिए कि उसने ख़ानदानों की तरबियत करनी आगे चल। अगर माँ की गोद में दीन की तालीम नहीं होगी तो नस्लों में कैसी आएगी। मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहली जो दरसगाह है दीन की, वो है माँ की गोद। माँ की गोद दीन की तालीम से जो है वो खाली है। इसलिए मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा अपने अजीज़ मुअल्लिमात से और तालिबात से कि अपने आप को मदरसे की 4 दीवारी में रहते हुए खूब तालीम और तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप जुमला तालिबात को और मुअल्लिमात को अल्लाह पाक हमेशा के लिए दीन के लिए कबूल फरमाए। हज़रत वाला का बयान शुरू हो जाता है, ज़िंदगी बाकी मुलाकात।